تو پھر انصاف سے بتانا، نبی نے حلیمہ کو پالا ہے، حلیمہ نے نبی کو نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ المصطفیٰ وعلا آلہ واولادہ اولی الصدق والصفا والوفا، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی، فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے، کوشش کریں بآواز بلند ایک مرتبہ درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ریاضت ہے، اور صرف ریاضت ہی نہیں بلکہ محبت ہے، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت ہے، اور صرف مودت ہی نہیں بلکہ اجر رسالت ہے، صرف اجر رسالت ہی نہیں بلکہ ماؤں کی شرافت ہے۔ جس شریف کو اس کی شریف ماں نے کائنات کے سب سے زیادہ شریفوں پہ درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے، وہ آل محمد کی شرافت پہ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما دے۔ صلی علی محمد۔ دعا گو ہوں اللہ کے کائنات ہماری آج کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل اور میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین عظام کی ذاکری کا صدقہ مالک بانی مجلس کے مرحومین کو حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ خصوص بالخصوص اس خاندان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور سید تنویر شاہ صاحب اور ان کے بھائیوں کے رزق میں، عزت میں، مال جان اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے احباب آمین کی صدا بلند کر رہے ہیں، مالک تمام کو دین و دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، سادات کی عزت و توقیر کرنے والوں کی عزت محفوظ فرمائے، دشمنان سادات کو نیست و نابود فرمائے، اور پوری کائنات میں امن و سلامتی کے لیے خدائے لم یزل اپنے پیارے نبی کے پیارے بیٹے آیت اللہ، حجت اللہ، اذن اللہ، بقیت اللہ، امام زمن وارث پنجتن قرآن ناطق کو اذن ظہور عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ظہور امام زمانہ کے لیے جس طرح درود پڑھنے کا حق ہے، ویسے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں تنویر شاہ جی کا، جنہوں نے مجھ حقیر کو، مجھ فقیر کو، مجھ کم علم کو، مجھ طالب علم کو، مجھ جیسے کو اس جیسے کی تعریف کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ پڑھنا میں کچھ اور چاہتا تھا، اور لیکن مجھے منبر پہ بیٹھے ہوئے حکم ملا کہ آج آپ نے اس ہستی کی شان بیان کرنی ہے جس کے بیٹے کو کل ایمان مانا جاتا ہے۔ یہی حکم تھا آپ کا جی؟
तामील करूंगा। मेरे बाद पढ़ने वाली हर दिल अजीज शख्सियत शहनशाह ज़ाकिरीन और खसूस बिलखसूस मैं जिनके बारे में कहा करता हूँ कि जिनकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मशहूर है। मेरी मुराद मुबल्लग विलायत अली इज़्ज़त माँ बाबा सैयद ज़रगाम बादशाह जी सरकार तशरीफ़ फरमा है। ज़्यादा देर किबला को मिंबर पे नहीं बिठाना, मिंबर है ही सैयदों का और सैयदों के हवाले करना है। नहीं तो मैंने किताबों में पढ़ा है कि सैयदों के खानदान के चश्मो चराग अक्सर मस्जिद नबवी के दरवाजे में खड़े होके लोगों को मिंबर पे बैठ के देख के कहा करते थे, मिंबर से उतरो, ये हमारे नाने का मिंबर है, तुम अपने बाप का मिंबर लेके आओ। जहां से परसों गुफ्तगू छोड़ी थी मैंने वहीं से शुरू करने लगा हूं। परसों क्योंकि महफिले मिलादे मुस्तफ़ा जश्न ज़हूर मुस्तफ़ा इसी रोज़े में पढ़ने की सादत नसीब हुई कि गुफ्तगू जहां से छोड़ी थी कि ये तो सारे बताते हैं कि सोना आया ते सज गए ने, फकीर शाह जी सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, ये कोई नहीं बताता सोना आया किसके घर में है। देखें, नबी का मिलाद मनाना हकीकत के अंदर नबी की सीरत बयान करना है। परेशान तो नहीं हो गए? और सीरत उतनी देर तक मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक सीरत में यह बयान न किया जाए कि नबी रहमत नूरे मुजस्सम आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके घर में पलते रहे हैं। ये उतनी देर तक हैदरी, तो सादा लफ्जों में अगर इसे बयान किया जाए तो यही बनता है कि मिलाद उतनी देर तक नामुकम्मल है जब तक उस मिलाद में तज़किरा खानदान रिसालत ना हो। और वैसे भी वो मिलाद नहीं जो जवान चुप करके बैठे हो, जिस मिलाद में हलीमा सादिया की डाची के किस्से हो, अबू तालिब की लोरियां ना हो। सारे मिलके हैदरी, बहुत आला दर्जे पे इस साल मिलाद मनाया गया, हुकूमती सतह पे भी और गैर हुकूमती सतह पे भी। आपने देखा कि जिसने कभी जिंदगी में चरागा नहीं किया, चलो बिजली चोरी दी सही, उन्हें भी लाइट लाई जरूर है। जिसने पहले नबी के मिलाद की मुखालफत की, इस साल उन्होंने भी सीरत कॉन्फ्रेंस के नाम से प्रोग्राम जरूर करवाया, लेकिन नामुकम्मल है वो महफिल मिलाद जिसमें हजरत इमरान के तस्करे ना हो। जो बंदे चुप करके बैठे हो, कराची मैंने ये जुमला कहा कि नामुकम्मल है वो महफिल मिलाद जिसमें हजरत इमरान का तस्करा ना हो। एक मौलवी साहब छोटे भाई की शलवार पहन के, बड़े भाई की कमीज पहन के उठ के खड़े हो गए और कहने लगे, पहले आप कहते थे कि नामुकम्मल है वो महफिल मिलाद जिसमें अहले बैत के तस्करे ना हो, अब आपने कहना शुरू कर दिया कि नामुकम्मल है वो महफिल मिलाद जिसमें हजरत इमरान के तस्करे ना हो। ये क्या बात हुई? आप शियों को खुश करने के लिए ऐसी बात कहते हैं। मैंने कहा कतई नहीं, आप मिलाद मनाते हो? कहने लगा जी। मैंने कहा फिर नमाज भी पढ़ते होगे? मुस्कुराए, कहता अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैं पढ़ता हूं। बोलो ना जो चुप करके बैठे हो, इतनी कोई और नहीं पढ़ता। तो मैंने कहा भाईजान तुम्हारी नमाज उतनी देर तक मुकम्मल नहीं जब तक नमाज में हजरत इमरान का तज़किरा ना हो। ऐसे हैरान होकर मुझे देखने लगा जैसे चंद बंदे मजलिस में बैठ के मुझे हैरान होकर देख रहे हैं। कहने लगा सुल्तानी वो कैसे? मैंने कहा अपनी नमाज सुना, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका से शुरू करके तशहद पे लेके आया, अशहदु अल्ला इलाहा
वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। मैंने कहा ये ना पढ़, कहता ये ना पढ़ूं तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। मैंने लड़के से कहा रख इसके सर पे कुरान और इससे जाकर पूछ कि आले मुहम्मद और आले इब्राहीम से मुराद यजीद का दादा है या हुसैन का दादा। सारे मिलके हथन खोल के समझ नहीं आई इस बात की। मौलवी नमाज में जिन पे दरूद पढ़ता है, सादिक शाह जी सरकार नमाज के बाद उन्हीं के मुतल्लिक कहता है कि उन्होंने कलमा। परेशान हो गए हो? मैं भी आखा के बंदे क्यों चुप ने, तो नजर होन पई है मेरी कि चंद बंदे हाथ बन्ने हुए ने, तो मेरा जाती तजर्बा है हाथ बन्ने होन तो समझ कोई नहीं आती। हाथ खोल के जरा बैठिएगा। नमाज में जिनके ऊपर दरूद पड़ा वो कौन है? सवाल है। आले इब्राहीम से मुराद कौन है? ये खानदान अबू तालिब है, जिनके बारे में मौलवी कहता जी, ये कल की बात है 12 रबीउल अव्वल को पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बराह रास्त इस्लामाबाद सेंटर से सीरत कॉन्फ्रेंस दिखाई गई। सारी कार्रवाई बैठ के मैं देखता रहा, क्योंकि मुझे तो बुलाता कोई नहीं वहां। बंदे परेशान हो गए। सच्ची बात है, पहले बुलाते थे क्योंकि मैं वहां पे जाके करता हूं बातें ऐसी कि जिन्हें सुन के वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सच्ची बात। अब मुझे बुलाता कोई नहीं। मैं सारी सीरत कॉन्फ्रेंस बाज़रगाम शरीफ सरकार बैठ के देखता रहा कि अब कोई सीरत में तज़किरा करता है जनाब हजरत इमरान का, अब कोई नाम लेता, पर नहीं। मैंने एक मौलवी साहब को फोन किया जो उस सीरत कॉन्फ्रेंस में अच्छे खासे जमे बैठे थे। मैंने कहा आप भी मुझे फ्रंट पे नजर आए कि भला आखिर में आपसे पूछना चाहता हूं, आपका हक बनता था, आप अली और वलीउल्लाह पढ़ते हैं, अबा कबा पहन के आप बैठे हुए थे, आपका हक बनता था कि वजारत मजहबी अमूर से कहते कि अगर सीरत कॉन्फ्रेंस पढ़ानी है तो यहां बताओ मुहम्मद किसकी गोद में पला है। उन्होंने कहा भाई नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं इनको छेड़ने की, और आप भी मोहतात रहा करें, जमाना बहुत तेज हो चुका है, कोई किसी के पीछे नहीं आता, तो जिसके पीछे अली हो और किसी को आने की जरूरत है ही नहीं। कोई बोले कोई ना बोले, नमाज में जिनके ऊपर पढ़ा जा रहा है दरूद, और बाद अज नमाज मुल्ला उसी मिंबर पे बैठ के जिन्हें काफिर कह रहा है, वजह क्या है? बस वजह सुनो और इजाजत। वजह है दुश्मनी अली। पंजाबी दे लोग बैठे हो, सुनते भी बड़े चंगी हो पंजाबी तुसी। मैं एक जुमला कह रहा किबला, एक जुमला लोकां नूं ओ माई याद है जड़ी रसूल ते कूड़ा सुटदी सी। मेरी तरफ देखिएगा, ओ माई लोकां नूं याद है जड़ी रसूल ते कूड़ा सुटदी सी। उस बीबी को भूल गए जो मोहम्मद को खाना पका के देती थी। वजह सोचने वाली बात है। वजह दुश्मनी अली, क्योंकि उस बीबी का ताल्लुक है अली के साथ, रिश्ते में है वो अली की मां। ये कनाता लखियां लथियां तो बन्ने सारे उधर वेखना शुरू कर दिते। भाईजान लथ गई इनियां ही बड़ियां ने जी, मालिक तुम सलामत रखे। वो रिश्ते में है वालिदाए गरामी मुर्तजा। अली की दुश्मनी में आके
مسلمانوں نے کبھی اس بی بی کا تذکرہ نہیں کیا جس کو بعد از رحلت نبی نے اپنی قمیض پہنائی. بعد از رحلت سرکار مدینہ نے اپنی قمیض اتار کے جسے دی بطور کفن کہ یہ میری ماں ہے، یہ قمیض یہ پہنے گی. شیعہ سنی بھائیوں، مسلمانوں کی ماں میں اور نبی کی ماں میں فرق نظر آیا آپ کو؟ مسلمان کی ماں اور ہے، نبی کی ماں. مسلمان کی ماں کو پتہ نہیں نبی کی قمیض ملے چاہے نہ ملے. علی کی ماں وہ ہے جس کو محمد کی قمیض ملی. اور یاد رکھیے گا، یہ دشمنی حیدر کرار کی وجہ ہے کہ لوگ حضرت عمران کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ فیصل آباد مولوی محمد اسحاق صاحب اہل حدیث عالم دین تنویر شاہ جی جمعہ والے دن خطبہ دے رہے تھے. ایک بندے نے اٹھ کے کھڑے ہو کے سوال کیا، علامہ صاحب دنیا ابو طالب کی دشمن کیوں ہے؟ مولوی اسحاق نے مسکرا کے کہا وجہ علی ہے. اگر معاویہ کا باپ ہوتا لوگ اسے بھی رضی اللہ کہہ دیتے. صرف دشمنی علی کی وجہ سے، لیکن لاکھ دنیا بھلائے حضرت عمران کو. تجھے زمانے نے، جناب عمران کے بارے میں، جی بسم اللہ، کہ تجھے زمانے نے بس ایک خطا سے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا. اور آپ کی طبیعت دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے یہ جملہ کہہ دوں کہ یہ مسئلہ پوچیدہ ہے نہ یہ ہے عقلوں سے بعید. لاریب فطرت کا تقاضا ہے شدید. ان لوگوں کی نظروں میں کافر ہے عمران جن لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہے یزید. نہیں، جن کا ایمان ہے کہ عمران کل ایمان کا بھی ایمان ہے، وہ ہاتھوں کو پنجہ کھول کے سینے کا زور لگا کے نعرہ حیدری. بسم اللہ. اور تجھے تھا ناز شہادت پہ بت پرستی پہ، تیرا غرور محمد نے توڑ ڈالا ہے. اور سمجھ میں آتی ہے عمران دشمنی تیری، اور تجھے یہ دکھ ہے کہ اس نے رسول پالا ہے. سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا، علی کی دشمنی کی وجہ سے لوگوں نے حضرت عمران کا تذکرہ نہیں کیا. پوری توجہ، یہ جملہ دل کی تختیوں پہ لکھنے کے قابل ہے. لوگ علی کی دشمنی میں آ کے اللہ جانے کیا کیا بھول گئے. اس لیے تو سلطانی کہتا ہے کہ سرکار سے محبت بھی بھول گئے، تم اجر رسالت بھی بھول گئے. ایک غار ہیرا یاد رہا، ایک غار ہیرا یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے. کب مال غنیمت بھول سکے، حیدر کی عنایت بھول گئے. غیروں کو نبی کا راوی کہا، حیدر سے روایت بھول گئے. من کن تو مولا سن تو لیا پر حکم رسالت بھول گئے. ملا تیرے اوپر خدا کی لعنت ہو، کعبے کی فضیلت یاد رہی، حیدر کی ولادت بھول گئے. ایڈا ڈھلا نعرہ او بھی رجوئے دے وچ ہوے تے گل بندی کوئی نہیں. جو ملنگ مزاج بندے بیٹھے ہو، ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. بھرے دربار میں میسم نے بتلایا یہ دنیا کو، باطل سے جو ڈر جائے علی والے ہاتھوں بلند کر کے علی لالی کلندر. صرف علی کی دشمنی کی وجہ سے
तुमने हजरत इमरान को भुला दिया। भूले मुल्ला भूलता है तो नहीं भूला अल्लाह। खुदा इल्म यज़ल ने अपने प्यारे नबी की सीरत बयान की। क्या किया जी? ऊंची तो बोलो। सीरत बयान की, जिसके लिए मुझे खुसूसी तौर पे हुक्म दिया गया। मौलवी सीरत कॉन्फ्रेंस करवा के, देगे पका के, चंदा मांग के बयान क्या करता है कि नबी नूर नहीं, तनवीर शाह जी, नबी बशर, अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर, कुफर नबाशत, नबी हम जैसे। कुरान के अंदर अल्लाह ने मोहम्मद की सीरत बयान की। अलम यजिद का यतीमन फावा, मोहम्मद तू यतीम था, हमने तुझे पाला। ये कौन है जिनके काम को अल्लाह अपना काम कह रहा है? एक चैनल है केबल दा, क्यों टीवी, एक मौलवी आंदा है, उस एक नौवा मसला कढ़िया। उस आख्या भाई बात यह है कि देखिए हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा कितनी मोहतरम है कि उन्होंने नबी को पाला है और अल्लाह उनके काम को अपना काम कह रहा है। वाह भाई वाह, गल नहीं बन गई। मौलवी कहते ही उसे हैं जो मर्जी अपनी चला सके। बात हजरत इमरान की, शान हजरत इमरान की, चोरी करके किसी और पे फिट करना, ये कमीनों की शुरू से आदत है। जेड़े बंदे चुप करके बैठे हो, अपने मर्जी के मौलवियों को जाके पूछ ले आज। ये पहले नजदियों का काम होता था। मैं एक जुमला पढ़न लगा, तनवीर शाह जी, मैनू 50% यकीन है कि इस जुमले तो बाद शिया नहीं बोलना, इन्ना मेरा बाईकाट कर देना है। इन्ना आखना है कि यह मौलवी खतरनाक है, इनू नहीं बुलाना चाहिए। सुन्नी तो दूर की गल रही, शीए कि यह गल मैं जान के करदा पिया ताकि मैनू बंदियां दा पता लगे केड़ा केड़ा बंदा अली नू मनदा है ते केड़ा केड़ा अली नू सोचदा है। इस बार देखें, ये कमीनों की शुरू से आदत है आले मोहम्मद के अलकाबात फजाइल चुरा के लोगों पे फिट करना। पहले ये काम खारजी करते थे, अब ये काम चलते चलते शियों में आ गया है। ए गोली हुंदी है या 70 रुपए दी या 27 रुपए दी, वजदी है, बंदा पुरबाश हो जाता है, रूह निकल जाती है, बाद च दफना आंदे ने। यही गल हुंदी है ना। ते मरते बंदे ट्रक थले आके कुत्ते की मौत भी ने, ते जे अली दे नां ते आ जाए तो और की चाहिए। इस गल तो बाद मैं मर जावा ना जी, तो मैंने दुख कोई नहीं, क्योंकि गल में नहीं बह जो टाइम थोड़ा है। तनवीर शाह जी, मर जावा दुख कोई नहीं, क्योंकि अली वाला होता ही वही है जो मौत से डरे ना, बल्कि मौत की तमन्ना करे, क्योंकि मौत के डर से अली कभी नहीं भागा मैदान से। जेड़े बंदे हाथ बन्नी बैठे हो ना, शाला कवर च भी चुप ही रहा है। कमीनों की आदत है आले मोहम्मद के अलकाबात चोरी करके अपने मर्जी के बंदों पे फिट करना। ये फजाइल आले मोहम्मद छुपाने के लिए तहरीक बनु अब्बासिया ने चलाई। सबसे पहले आले मोहम्मद के अलकाबात चुरा के लोगों ने लोगों पे फिट किए। दोनों घरों से मुझे शिकवा है, सुन्नियों से भी शियों से भी। पहले शियों से बात करूंगा, बाद में सुन्नियों से बात करूंगा। दोनों नाराज होते हैं, हो जाएं। फरमान है नाजुल बलागा में अली इमाम का कि लोगों की नाराजगी की वजह से कभी हक बात ना छुपाना, मेरी नाराजगी से बचना। लकब आयतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम, ये लकब है इमाम जमाना के। चैलेंज मेरा कोई बंदा उठ के खड़ा होवे तो उठ के आखे सुल्तानी तू गलत पे आना है, मैं मिंबर ते होन गड्डी चो किताबा मंगवा के साबित करके ना जावा मेरा प्यो कोई नहीं। आयतुल्लाह, अल्लाह की दलील,
मौलवी नहीं 14 है। बोलो ना जेड़े चुप करके बैठे हो। हुज्जतुल इस्लाम फकीर शाह जी बंदे मर जाते ने, सोची पै जाते नहीं बोलते, आंदे ने गल खतरनाक है। हुज्जतुल इस्लाम शाह जी हुज्जतुल इस्लाम मुल्ला नहीं, इमाम जमाना है। कंट्रोल करो इस अलकाबात को, गैर मासूम का ये लकब नहीं। और मेरे पता हुए हाथ देखो, 3 वीडियो कैमरे लगे हैं। सुन्नी भाइयों तुम भी सोचो, सिद्दीक अकबर पहले अली है और सिर्फ अली है। फारूक आजम सिर्फ अली है। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक सारा पंडाल भी उठ के खड़ा होकर दाद दे, मैं राजी होने वाला नहीं। चुप करके भी बैठा रहो, मैं नाराज होने वाला नहीं। बोलेगा वो जिसकी मान उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह है, वह खलीफतहु बिला फजल पढ़ के दूध पिलाया है। सिद्दीक अकबर अली है, फारूक आजम अली है, जिन्नूरैन 2 नूरों वाला कोई और नहीं, अबू तालिब है। गोद में होते थे 2 लाल, गोद में होते थे 2 फूल, एक साइड पे मोहम्मद, एक साइड पे अली। मक्का के रहने वाले कहते थे वो 2 नूरों वाला जिन्नूरैन बैठा है। ये लकब है अली के बाप का। मैंने पहले पता ही तुसा कोई नहीं बोलना जेड़े पीछे बैठे। इंशाअल्लाह जेड़ा इस गल ते चुप रहा कवर च भी चुप ही रहे। आखिरी जुमला और इजाजत, जिंदगी रही मुलाकात होती रहेगी, लेकिन याद रखना अल्लाह ने सीरत मोहम्मद बयान करके कहा अलम यजिद का यतीमन फावा, मोहम्मद तू यतीम था, हमने तुझे पाला। किसने पाला? 38 तफसीरें गवाह हैं कि इस आयत के मिस्दाक कोई और नहीं, अली का बाबा है। तफसीर एक नहीं मान बाबा सरकार, 38 तफसीरें गवाह हैं। इस आयत के मिस्दाक जनाबे हजरत अबू तालिब हैं। मैं सियालकोट एक महफिल मिलाद ते गया तो मैं उसे आखिया कि हजरत अबू तालिब ने पाला। एक जवान उठ के खड़ा हुआ तो कहने लगा सुल्तानी साहब आप कहते हैं अबू तालिब ने पाला, ये जो आपके साथ नात खान बैठा इसने आपसे आने से पहले इसने नात पढ़ी है, ये कहता है हलीमा ने पाला। गल मुक गई। सुल्तानी लैन लगा इजाजत, मसायब किबलाई पढ़नगे, जुमला है सुन लो ते दिल दी तख्ती ते लिख लो। मैंने उस नात खान को खड़ा किया, मैंने कहा भाई खड़ा हो, तूने नात पढ़ी है? कहता जी मैंने पढ़ी है। मैंने कहा घबरा नहीं, मुझे बता तूने क्या नात पढ़ी है। हयात दीवाना साहब आप भी बड़ी नातें पढ़ते हैं माशाल्लाह, बड़े शेर पढ़ते हैं, हर जाकर के बाद आप 2-3 शेर पढ़ जाते हैं माशाल्लाह, और पूरे जाकर हैं, मौला आपको सलामत रखे। नात सुनिए और ईमान ताजा। सुनाऊं नात? मैं सुरीला नहीं पर जरीला भी नहीं, क्योंकि नातों का महीना है तनवीर शाह जी। और ये बात भी बता दूं कि नात सुनने से पहले किसी नात खान के सर पे कुरान रख के पूछना सबसे पहले मोहम्मद की नात किसने पढ़ी थी। नहीं बताएगा मुल्ला के सबसे पहले मोहम्मद की नात किसने पढ़ी। जिसने सबसे पहले मोहम्मद का कसीदा पढ़ा उसे अबू तालिब कहते हैं। नात कोई नहीं हुंदी, 8 टांगा पाट टांगा विच टल मटलियां, मैनू पाओ फुलां दे हार, मैं मदीने चलिया। अच्छा ठीक है, क्यों है मुसलमान जो बन के रहा हकीकत में रिसालत का निगहबान। तारीख दर बड़ी है तो यकीनन कहोगे हाँ काफिर है अबू तालिब, हमें इस तरह मनवाओ तुम भी निकाह अपना किसी काफिर से बढ़वाओ।
नात ये नहीं कि लगियां नहीं मौजा, ये नात नहीं, ये दुआ है मादरत के साथ। ये नात नहीं, लोगों को नात पढ़ने का ढंग ही नहीं, सलीका ही नहीं, तरीका ही नहीं, मरहूम है दुनिया नात से। नात ये है सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। ये मेरे ख्याल में साउंड वाला नाराज हो गया है, इन्हों नबी का वास्ता थोड़ी जी आवाज चा खोले, खोली अल्लाह तेरी जिंदगी करे। नात ये है कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। क्यों टीवी तो मैं कटन की वजह पता की सी, मैं उसे गल दसी सी कि सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैंने कहा मौलवियों ये तो कहते हो कि सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बताते क्यों नहीं तारा किसके घर में आया था? जड़े चुप हो शाला मर जाओ मदीने जाके। सदका लेने ये नात है। मैंने कहा अच्छा भाई नात खान तूने क्या कहा जरा सुना। उसने कहा जी बस मैंने वही कहा जो दूसरे कहते। मैंने कहा जब लकीर दा फकीर होया ना चल सुना। उस नात शुरू करती सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाथ खोलो मैं नात सुनाना वा। नात सुनने वास्ते पैसे जेब च होने चाहिए ने। तुसी पैसे ना दे जे हाथ बुलंद करके अली दी विलायत दा ऐलान कर दे जे मेरे आन दा मौका पूरा हो जाएगा। वो शुरू हो गया माड़ी जी एक माई सी जदा नाम हलीमा दाई सी, कदी डिगदी सी कदी ढहंदी सी, वो तरले करदी रहंदी सी। जे नात ना होवे तो जेड़ी सजा आखोगे मैं भुगतन वास्ते तैयार हाँ। सैयद की मौजूदगी जितने सादात बैठे, माड़ी जी एक माई सी जदा नाम हलीमा दाई सी। कहता जी नबी को पाला है हलीमा ने। मैंने कहा कैसे? कहता माड़ी जी एक माई सी जदा नाम हलीमा दाई सी, कदी डिगदी सी कदी ढहंदी सी, वो तरले करदी रहंदी सी। उन कोल ना कोई बिठांदा सी, उन गल ना कोई नलांदा सी। ओदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी, ओदी डाची सब तो माड़ी सी, सब तो पिछे मक्के आई सी, पिछों आके बड़ा पछताई सी। हरबू उस खड़काया सी और खैर किसे ना पाया सी। बनी दर दर दी सवाली सी, ओदी झोली फेर भी खाली सी। जदों सारे पासे रह गई जे मदनी दे बूए बह गई जे, जदों सारे पासे रह गई जे मदनी दे बूए बह गई जे, मदनी दा बूआ खुले आए, रहमत दा झुल्ला झुलिया। एक औरत बाहर आई है, उन्हें दाई वाल झाती पाई है, उन्हें नाले मुंह फरमाया है चल नाल तेनू ले जावा मैं, एक नूरी मुख विखावा मैं। साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है जदा चन ने भी कलमा पढ़िया है। मैंने कहा तू इतनी लंबी नाच जो सुना रहा है आखिर बता तू बताना क्या चाहता है? मुस्कुरा के कहता है कखों की कुल्ली थी जिसमें दिया था पर दिए में तेल नहीं था, बकरी पर दूध नहीं था, जमीन थी पर घास नहीं थी। गुर्बत के आलम में कायनात का रसूल उसकी झोपड़ी में गया, नबी के कदम लगने की देर थी, जमीन ने घास उगाना शुरू की, आसमान से नूर बरसना शुरू हुआ, हलीमा के वारे न्यारे हो गए। मैंने